اور اس وجہ سے، اس انتقام کی وجہ سے، ان کرائے کے ترجمان کے جھوٹے بیانات کی وجہ سے، اور عمران خان کا وہ بیانیہ جو دفن ہو گیا کیونکہ یہ آخری کیس تھا شہباز شریف کے خلاف، اس کے بعد کوئی کیس موجود نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب تمام کیسز کے اوپر میرٹ پر بیل ہو چکی ہے ان کی، اور یہ سرین غنڈہ گردی ہے عدالت کے فیصلے کے خلاف۔ یہ غنڈہ گردی ہے جو اداروں کو استعمال کر کے، اپنے اختیارات کو استعمال کر کے سیاسی مخالفین اور شہباز شریف صاحب کے خلاف کی جا رہی ہے۔ لیکن اس سے مسلم لیگ نون کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ سزائے موت کی چکیوں میں اور جیل میں رہ کر آتے ہیں، وہ آپ کے ان ہوچے کنڈوں سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مسلم لیگ نون کے کارکن کو، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ سوائے سیاسی مخالفین کے خلاف سیاسی انتقام کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور اس کے اوپر آج میں آپ کے توسط سے، یہ جو غصے کی وجہ ہے نا عمران صاحب کے، یہ جو غصے کی وجہ ہے، کیونکہ آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوروں کو تو ہاتھ نہیں لگانا، ان کو NRO دینا ہے۔ اپنے دوستوں کو اس طرح ECL سے نکالنا، وہاں بیٹھ کے دھرنا دینا ایئرپورٹ کے اوپر کہ نکالا جائے میرے لاڈلے کو، ورنہ میں ٹریول نہیں کروں گا۔ اس وقت پورے کی پوری انٹیریئر منسٹری کو یرغمال بنایا، پوری FIA کو یرغمال بنایا، اور آج شہباز شریف کے خلاف بھی پوری کی پوری انٹیریئر منسٹری کو عمران خان نے یرغمال بنایا ہوا ہے، اور ٹاؤٹ اور کمیشن خور شہزاد اکبر کے ذریعے یہ فیصلہ امپلیمنٹ کرایا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انصاف جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہے۔ آج جب انہوں نے یہ حرکت کی تو شہباز شریف صاحب کا وہ تفصیلی تحریری فیصلہ آیا ہے، جن تین ممبر بینچ نے جب شہباز شریف صاحب کو بیل دی، اور اس سے پہلے سرفراز ڈوگر صاحب نے بیل دی، اس کا آج تحریری فیصلہ ڈیٹیلڈ آیا ہے۔ میں چیلنج کرتی ہوں شہزاد اکبر کو، جو کاغذوں کے اوپر خاکے بنا کر دکھاتا ہے کرپشن کے، جو تصویریں لگا کر میڈیا ٹرائل کرتا ہے، میں ان کو چیلنج کرتی ہوں کہ تحریری فیصلے کو ٹی وی پر آ کر پڑھیں، تحریری فیصلے کے اوپر پریس ٹاک کریں، تحریری فیصلے کو خود PID میں بیٹھ کر پاکستان کی عوام کو دکھائیں۔ اور وہ فیصلہ کیا کہتا ہے؟ پہلی بات کہ وہ سرفراز ڈوگر صاحب کے فیصلے کو اپہولڈ کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ 4 ججز نے شہباز شریف کے حق میں فیصلہ دیا، اور جو بیل ہے وہ 4 ججز کے آرڈر پہ آئی۔ اور اس فیصلے کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، یہ مسئلہ ECL کا نہیں ہے، یہ مسئلہ بلیک لسٹ کا نہیں ہے، یہ مسئلہ PNIL جو لسٹ بنائی گئی ہے اس کا نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو عدالتوں کے فیصلے میرٹ پر آ رہے ہیں، جو ان کی الزام تراشی کو، ان کے میڈیا ٹرائلز کو، کیونکہ کاغذ تو لہرائے جاتے ہیں PID میں، لیکن ثبوت پیش کرنے ہوتے ہیں عدالتوں میں، جہاں سے یہ نیب کورٹ سے بھاگے، لاہور ہائی کورٹ سے بھاگے، سپریم کورٹ سے بھاگے۔ اور آج فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ شہباز شریف نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب آفس ہولڈ کرتے ہوئے کرپشن کا ایک دھیلا یا مس یوز آف اتھارٹی یا اس عہدے کا استعمال نہیں کیا جس سے ان کے خاندان کو فائدہ پہنچے۔ کرپشن کی ڈیفینیشن لکھی ہے فیصلے کے اندر، اور اس کرپشن کی ڈیفینیشن کو پھر جو الزامات لگائے ہیں نیب نے، اس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے یہ لکھا گیا ہے کہ کسی قسم کی مس یوز آف اتھارٹی، کسی قسم کا اختیارات کا استعمال اور کسی قسم کی کرپشن ثابت نہیں ہوتی جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے۔ 28/9/2020 کو شہباز شریف کو اریسٹ کیا گیا، اور لکھا ہوا ہے فیصلے میں کہ نیب نے کوئی انویسٹیگیشن ڈیورنگ اریسٹ کنڈکٹ ہی نہیں کی شہباز شریف کے سورسز آف انکم کے اوپر۔ یہ اس فیصلے میں درج ہے۔ شہزاد اکبر صاحب عمران صاحب کے حکم کے اوپر الزامات لگاتے رہے، منی لانڈرنگ کے الزامات لگاتے رہے، کل تک کاغذوں کے اوپر خاکے پیش کرتے رہے، لیکن اس عدالتی فیصلے میں لکھا ہے کہ 28 سپٹمبر 2020 کو شہباز شریف کو اریسٹ کیا اور
नैब ने कोई इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग अरेस्ट कंडक्ट ही नहीं की सोर्सेस ऑफ इनकम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। 110 गवाहान को पेश किया गया, 58 वॉल्यूम्स बनाए गए रेफरेंस के शहबाज शरीफ के खिलाफ। 1 रुपए की करप्शन रेफरेंस के अंदर शहबाज शरीफ के नाम के साथ मंसूब नहीं की गई। 110 गवाहान में से एक गवाह ने भी शहबाज शरीफ के खिलाफ गवाही नहीं दी। उसके बाद ये भी लिखा हुआ है कि शहबाज शरीफ ने किसी किस्म का इख्तियार और ऑफिस को इस्तेमाल नहीं किया जो उनके असासे डिक्लेयर्ड है, जो उनके असासे एफबीआर में उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किए हुए हैं, और उन्होंने किसी किस्म की करप्शन करते हुए उन असासों को नहीं बनाया। किसी किस्म का बेनामी, ये जो बेनामी यूं कागज लहराते थे, इस फैसले में लिखा हुआ है कि कुछ साबित नहीं होता कि शहबाज शरीफ ने बेनामी को इस्तेमाल करके अपने असासों के अंदर इजाफा किया हो। ये इस फैसले का तहरीरी हुक्म जो डिटेल है। और किसी किस्म का किक बैक, ये इस फैसले में लिखा है, किसी किस्म का किक बैक, किसी किस्म की करप्शन और किसी किस्म का सबूत कि शहबाज शरीफ ने किसी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग की हो, इस फैसले में उन्होंने लिखा है कि मौजूद नहीं है। उसके बाद कोई अकाउंट में पैसा, किसी अकाउंट में पैसा, ये जो टीटी करते हैं ना, इसका फैसले में तहरीरी लिखा हुआ है, किसी किस्म की टीटी शहबाज शरीफ के ना अकाउंट में और ना किसी किस्म की टीटी से शहबाज शरीफ ने अपने असासों में इजाफा किया है। ये इस फैसले के अंदर दर्ज है, शहजाद अकबर साहब और इमरान साहब। और किसी किस्म का कोई सबूत नहीं मिलता कि शहबाज शरीफ ने करप्शन के जरिए असासों में इजाफा किया हो। और लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, नो इन्वेस्टिगेशन वॉज कंडक्टेड टू डिग आउट द सोर्स ऑफ इनकम एंड नैब हैज हाफ हार्टेडली परसूड द केस। और ये हाफ हार्टेडली फैसले में दर्ज किया है 3 जजेस ने कि ये नहीं हो सकता कि हाफ हार्टेडली आप रेफरेंस बनाएं, किसी को अरेस्ट करें 7 से 8 महीने के लिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है नैब की कि अगर उन्होंने अरेस्ट किया है तो वो सबूतों के साथ, इन्वेस्टिगेशन के साथ उसको पेश करें। ये है असल वजह शहबाज शरीफ को ट्रैवल क्यों नहीं करने दिया गया। और जैसे मैंने पहले कहा, मैं चैलेंज करती हूँ इमरान खान को, लगाते हैं ना नारे खड़े होकर, एनआरओ नहीं दूंगा। मैं शहजाद अकबर को चैलेंज करती हूँ कि इस फैसले को, जो तहरीरी फैसला आया है शहबाज शरीफ का, जो 3 जजेस ने एक तो अप होल्ड किया है फैसला सरफराज डोगर साहब का, और ये फैसला मैं चैलेंज करती हूँ पाकिस्तान की आवाम को पढ़कर सुनाया जाए। मीडिया से भी मैं दरख्वास्त करूँगी कि जिस वक्त ये पीआईडी में बैठकर 2-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जब इमरान खान जो खुद आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोर है, 23 फॉरेन फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग का जवाब देना है जिसने, जो मालम जब्बा में मफरूर है, जो बीआरटी पेशावर में मफरूर है, जो आटा कमीशन में मफरूर है, जो चीनी कमीशन में मफरूर है, जिसको कानून हाथ नहीं लगा सकता, जब वो खड़े होकर कहता है ना ताकतवर को कानून नहीं पकड़ सकता, बिल्कुल ठीक कहता है। क्योंकि हमारी तरफ 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम को पकड़ा और जिसने खुद दरख्वास्त दी सुप्रीम कोर्ट को कि एहतसाब किया जाए, जिसको अरशद मलिक साहब, अल्लाह उनको उनके गुनाहों को माफ़ फरमाए, अब वो फौत हो गए, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहती। जब सरीना में कागजों के अंदर फैसले आए, जब अवाम को डैम के ऊपर डैम फूल बनाया गया, उस वक़्त 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ साजिश हुई। उसके बाद शहबाज शरीफ, उसके बाद मुस्लिम लीग नून का हर वो लीडर जिससे ये खौफज़दा थे, उनको जेलों में डाला। अब आज खड़े होकर अवाम के सामने इस फैसलों को पढ़ें, चाहे वो फैसला शाहिद खकान अब्बासी का हो, साद रफीक का हो, सलमान रफीक का हो, मिफ्ता इस्माइल का हो, राना सनाउल्लाह का हो, शहबाज शरीफ का हो, आज पढ़ें अवाम के सामने, आज फैसला आया है। और मैं मीडिया से जैसे दरख्वास्त कर रही थी कि आपको जो फैसला है उसको पब्लिक करें, अपनी स्क्रीन्स के ज़रिए। अगर 2 घंटे की प्रेस टॉक चल सकती है उन इल्ज़ामात के ऊपर मबनी, जब खड़े होकर मुल्क का वज़ीर आज़म इल्ज़ाम लगाता है, जब उसका मुशीर, टाउट और कमीशन खोर
खाके बना बना कर झूठे इल्जामात लगाता है। जब वो लाइव चलती है 2-2 घंटे, तो आज इस फैसले को पब्लिक करें और बताएं पाकिस्तान की आवाम को कि इनकी छोटे जहनियत रखने वालों की क्या असलियत है और क्या इनकी औकात और घटियापन है। और आखिर में मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैं FIA के जो डायरेक्टर्स हैं उनको भी कहना चाहती हूँ कि एक कोर्ट ऑर्डर आ चुका है जिसके ऊपर 1 टाइम परमिशन मिल चुकी है। किसी किस्म का कोई इसमें अभाम नहीं है। आपका जो सिस्टम RTS आज तक अपडेट ना हुआ, आपका जो सिस्टम जिसमें डिले आ रहा है, कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक उसको अपडेट करें और इनकी बातों में ना आए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सज़ा 6 महीने होती है और अगर आपने अदालत के फैसले की हुक्म अदूली की, कंटेम्प्ट की, ओपन कंटेम्प्ट की इनके कहने पर, तो आप कंटेम्प्ट में हम मुशावरत कर रहे हैं वकला के साथ कि हम एप्लीकेशन देंगे और आपको उसमें तलब किया जाएगा। इनके पीछे मत खड़ी होइएगा, ये आपसे इम्प्लीमेंट कराते हैं गैर कानूनी ऑर्डर, लेकिन फिर तज़हीक भी आपकी होती है, तज़हीक भी अदारों की होती है और अदारों को यरगमाल बनाकर सियासी इंतकाम का जो अमल है और जो पैटर्न है उसको अब ख़त्म होना चाहिए और इसमें अदारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। आपके सामने है, आपको क्या लगता है कि शहबाज साहब चले जाएंगे या जिस तरीके से FIA चल रही है, शहबाज साहब एक पाकिस्तानी बनाएंगे या चले? देखिए, बात इतनी है, वो लिस्ट अलग से बनाई गई है। जी मैंने आपको शुरू में बताया कि ये ना ब्लैक लिस्ट का मामला है, ना ECL का मामला है, ये PNIL लिस्ट है। ये नहीं बनी, ये इख्तरा है इमरान खान के दिमाग की। मैंने शुरू यहीं से किया है और ये वो असलियत बताता है उस शख्स की जो सिर्फ हसद, बुग़्ज़ और सियासी इंतकाम में झुलस रहा है। और शहबाज शरीफ साहब की जो आपने बात की, हम आज आए थे यहाँ FIA को बताने कि आप अपने सिस्टम को अपडेट करें और जैसे ही अदालत के अंदर अदालतें खुलेंगी तो हम एप्लीकेशन भी देंगे और जो भी हमारी कानूनी तरीक़ाकार होगा उसके मुताबिक हम चलेंगे। जी, हम शहबाज शरीफ साहब का जो चेकअप था वो ड्यू था और इसी वजह से उन्होंने जाना भी था और फिर जल्द वापस भी आना था, क्योंकि आपको पता है कि उनका कॉन्डक्ट और अदालत ने जो उनको 1 टाइम परमिशन भी दी है वो इस बेस पर दी है कि जो उनका कॉन्डक्ट है, उनका कॉन्डक्ट आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी से मफरूरी नहीं था जो इस हुकूमत का है, जो इस वज़ीर आज़म का है, जो उसके टाउट्स और कमीशन खोरों का है। शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने से बेहतर है इमरान खान का नाम ECL में डाला जाए, शहजाद अकबर का नाम ECL में डाला जाए, इन तमाम आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों का नाम ECL में डाला जाए, क्योंकि भागने वाले ये हैं। अब जवाब तलबी अब इनकी होनी है, एहतसाब अब इनका होना है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो वाहिद जमात है जो मियाँ नवाज शरीफ से लेकर, शहबाज शरीफ से लेकर, उनके बच्चों से लेकर, शरीफ खानदान से लेकर पूरी की पूरी जमात की क़यादत एहतसाब के अमल से गुजर चुकी है। इसलिए जब ये NRO की बात करता है, पागलपन का दौरा लगता है इनको पड़ गया है, इनकी ज़हनी कैफियत के ऊपर शक होता है। अब एहतसाब आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों का होगा और हो रहा है। नौशहरा में हुआ, डस्का में हुआ, वज़ीराबाद में हुआ, खुशाब में हुआ, कराची में हुआ।